same to your examiner that I know so far. A detailed insight to your personality. So in today's discussion, we will try to understand not only introduction, but we will try to see how to proceed further, how to write an impressive introduction. We will talk about the conclusion as well, and we will try our level best to understand कि दोनों के दरमियान जो रिदम होता है, जो एक सीक्वेंस होता है, वो हमने लाना किस तरह से है, और अगर हमने लेके आना है तो उसको मेंटेन कैसे करना। अगर हम मेंटेन कर पाते हैं, टोन एंड टेनर को सेट कैसे करेंगे, तमाम की तमाम जो हैं ये डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आज की क्लास में डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे। CSS का इंग्लिश ऐसे जैसे ही हम शुरू करते हैं तो एक चीज़ हमारे जहन में फ़ौरन से आ जाती है, और वो ये आ जाती है कि ये इंग्लिश ऐसे जो है, ये वो सब्जेक्ट क्यों है कि जिसके बारे में लोग हमेशा ये कहते हैं कि बड़ा टफ टाइम देता इंट्रोडक्शन ही है जिसने ये कि हाँ जी आप जो हैं वो यहाँ से प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं, यहाँ से आगे चल सकते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स ये जो है वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट मी टेल यू समथिंग in very simple words. Your whole examination system, whether you're appearing for CSS, PMS, SELR, whatever exams you are embarking upon, you need to understand the introduction is going to be the casting vote in your success. Let us try to understand how to write an introduction and how to proceed further towards conclusion. But before telling you people, before answering these questions, how to write an introduction, it is very important to discuss what do we mean by an introduction in English essay. And the introduction of English essay is a crucial and critical component. Why crucial? Because it is going to be your first impression for your reader. For me, I don't know who are you. For me, I don't know how many books you have read so far. For me, I don't know you are from Rajanpur, you are from Balochistan, you are from Quetta, you are from Kashmir, wherever you are from. Your introduction is providing me a clear picture. Not only the clear picture of your personality, but an engaging overview of your essay's topic and argument. So whenever I say introduction is that important, I mean it. Usually the people they say, and we node in affirmation, all right, an effective introduction should captivate readers attention, but how we can grab it? A lot many people they say your introduction should grab the reader's attention, but we do not know ultimately how to do it. It is quite easy to claim, it is quite easy to say your introduction should grab the reader's attention, but what sort of techniques, steps, and tricks you can utilize here? Present the context, state the thesis, and outline as a structure. In today's class, I'm going to unveil all these steps one by one. I will try my level best to take a live example, to take a CSS Special 2023's essays topic, and we will try to jot it down. We will try to break the topic in details.
But remember one thing, your introduction can leave a lasting impression on the examiner. And in CSS, in any paper, in any competition exams, if you fail in a single subject, that means you are not going to cope up. That means you are overall failed. So how you can impress your examiner with a strong introduction? On the basis of my experience, on the basis of my marking of a provincial management services paper, I'm sharing all these tips and tricks, all these tips with complete responsibility, with full responsibility. Remember, you need to start your introduction with a hook. But stop for a moment here. When we say you need to start your introduction with a hook, how you are going to create a hook? For example, is there any particular way, is there any step that we can apply in our essay paper, and with that we can start our essay? What sort of steps are there in case we want to start our essay with a hook? And the hook is mandatory? The answer of this question is yes. If you are starting your English essay without any hook statement, congratulations, you need to appear once again in the paper. Why? That means you are not grabbing the attention of the person for whom you are writing your essay. When I say hook statement, that is just like hooking a fish. That means you need to grab the reader's attention. And yes, if you people have some steps to hook a fish, definitely here to grab the attention of your reader, you can apply these steps. The first one is it can be a question. While you're talking about a hook statement, it may be a question, a startling fact, a quotation, a brief anecdote, or a thought-provoking statement. No, here we face another problem. So it is quite easy to memorize, like we need to pose a question, a startling fact, a quotation, a brief anecdote, or a thought-provoking statement. But the people, the aspirants, when they are in their paper and when they see the topics, they are out of their mind. Maybe owing to confusion, maybe owing to the pressure of the competition exams, but yes, they ignore this very first step. There is an idiom in English that claims write this statement in red words. That means you're not supposed to forget these words. Hook statement is inevitable. For example, if you are starting an essay, why instead of just talking about here and there, why just pushing aside the topic, why don't you start directly imagine a world where clean water is a luxury, not a necessity? Let me make it more simple. The first step that I want to address right now is begin with a hook. अगर आप अपना ऐसे प्रोसीड फर्दर कर रहे हो, जितना अच्छा जाके आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, but you are not starting your essay with a hook, it means that is just a wastage of time. हुक के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Step 2. I have mentioned everything in numbers for your convenience, and I will share this file at the end of the session ताकि आप लोगों को पता चल जाए. दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी कॉन्टेक्स्ट. हुक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेप होता है कि आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना होता है. आपने अपने रीडर को बताना है कि हजूर वाला मैं जो लिख रहा हूँ ये रेलिवेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है और टाइमली क्यों है. आपको अपने जो इशू आपने जो टॉपिक में उठाया उससे रिलेटेड 2 से 3 लाइंस को पुट करना होगा. ये सेकंड जो है वो स्टेप है. Yeah, I'm going to give you a lot many examples. अभी सिर्फ आप ये समझ लें कि हुक जो है वो स्टेटमेंट से शुरू करना है. I will give you
7 to 8 examples, Alia. Next, third step is you need to present the thesis statement. Thesis statement, that is a central argument of your essay. एक ऐसी साफ सादा कंसाइज स्टेटमेंट जिसको आपने जो है वो क्लियरली मेंशन किया हो. Thesis statement, that means whatever you are telling, your language is clear, you are concise, and you are giving your reader a preview of your stance. Remember one thing, I have checked a lot many essays, and on daily basis individual evaluation sessions are there. The people, they are stuck at their thesis statement. वो नहीं समझ पाते हैं. They need to proceed further in clear words, concise, और रीडर को ये बताना है कि आपका स्टैंस क्या है. What is your stance? Thesis statement क्या हो सकती है? This essay will argue that addressing the global water crisis requires a multifaceted approach, जिसको explain किया जा सकता है, जिसको खोला जा सकता है, जिसकी तशरीह की जा सकती है, including government policies, sustainable infrastructure and public awareness campaigns, जिसके ऊपर आप सीर हासिल गुफ्तगू कर सकते हो, where you can write 2500 to 3000 words. And I am at my wit's end when I see there are a lot many people who claim, जो बच्चों को ये बताते हैं कि आप 1200 से 1300 वर्ड्स भी लिख दोगे तो आप पास हो जाओगे. Believe me, I am the part of that particular team जिन्हें पेपर इवेल्युएट करने का मौका मिलता है. ऐसा नहीं होता है. 2500 means 2500. ठीक है, you do not need to reach the limit of 3000, but at least 2500 should be there. Otherwise we are going to penalize it. ये जो आपको कम लिखना है ये आपको प्रोसीड फर्दर करना पड़ेगा अपने नंबर्स की डिडक्शन से. फिर आपको अपने ऐसे की आउटलाइन को जो स्ट्रक्चर है उसको आउटलाइन करना पड़ेगा माइंड के अंदर कि मैं बयान क्या करना चाह रहा हूँ. सो पहला स्टेप था हुक स्टेटमेंट का, दूसरा स्टेप था टॉपिक के बारे में कॉन्टेक्स्ट देने का, तीसरा था थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो करने का, चौथा माइंड में जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, सोचें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, सोचें कि मैंने किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स देना है और अपने रीडर की अटेंशन को एंगेज करने हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर कंसाइज रहिए, बी कंसाइज. आपका इंट्रोडक्शन 10 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर द कंपटीशन एग्जाम्स 10 से 12 लाइनें मैक्सिमम. हमारे पास जो है इस वाले रूल को, बिकॉज ये कंफ्यूज कर देगा, आपने सिर्फ जो है वो 10 to 12 लाइन्स जो है वो लिखनी है. एंड लेट मी मेंशन हियर 10 to 12 लाइन्स. स्टे फोकस्ड. ये लाइन इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सादा है. शायद मैं इस वर्ड पे ओवर एम्फसाइज कर सकता, शायद मैं इस वर्ड को लिख सकता, इससे बड़े बोल्ड वर्ड्स में मैं लिख सकता, और मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ. शायद मैं आपको बता सकता कि ये वाले इंट्रोडक्शन ऐसे टॉपिक्स एंड थीसिस, इस टॉपिक से, इस लाइन से आप भटके नहीं और आपका जो ऐसे है वो फेल नहीं हुआ. आपने फ्लाउंडर करना है इस लाइन से, and you are there. Once you floundered this very line, once you moved away from this very line, आपका ऐसे फेल हो जाएगा. And that is introduction directly relate करना चाहिए टॉपिक्स के साथ और थीसिस स्टेटमेंट के साथ. और फिर अगर कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो रिवीजन का टाइम जो है वो रखें और उसको रिवाइज करें. अवॉइड क्या करना है? What to avoid? While you're there in your examination, remember one thing: avoid cliches. एक मैं ऐसे चेक कर रहा था हाल ही में, उस बच्चे ने 2-3 कोटेशंस याद की हुई थी, वो उन्हीं कोटेशंस को रिपीट कर रहा था.
और तो ट्रांजिशंस की भी लिमिटेड सी वैरायटी थी, इन एडिशन, मोर ओवर, एज कंपेयर टू, एज वेल एज, यही सारी की सारी चल रही थी। और तो और कुछ वोकेबलरी के भी गिने चुने अल्फाज जो हैं वो यूज किए हुए थे, जिसको पता चल रहा था कि ये एडजस्ट किया जा रहा है, और वो अल्फाज क्लिशे बन गए थे। क्लिशे का क्या मतलब है? किसी वर्ड का इतनी कसरत से इस्तेमाल होना कि वो डिस्कशन में जो है वो बुरा लगने लग जाए। अवॉइड वीक स्टेटमेंट्स। वीक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इन क्लिशे? डू नॉट ऐड वैल्यू और डेप्थ टू योर इंट्रोडक्शन। समझाता हूँ मैं। जब मैंने पहले कहा अवॉइड वीक स्टेटमेंट, व्हाट डू आई मीन? एक वीक स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ आपको। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 2023 के स्पेशल जो है वो एग्जाम्स में ऐसे था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्रीज और बाउंड्स। वीक स्टेटमेंट है एआई हैज बिकम ए पावरफुल फोर्स एंड इट्स इम्पैक्ट इज इमेंस। इंट्रोडक्शन में वीक स्टेटमेंट्स की कोई जगह नहीं है, पूरे ऐसे में ही नहीं। अब वीक स्टेटमेंट क्या है? AI has become a powerful force. कौन सी फोर्स की बात करना चाह रहे हैं आप? What sort of force you are talking about? And its impact is immense. और इसका इम्पैक्ट जो है वो कौन सा इमेंस है? क्या इस इमेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके बजाय अगर ये लाइन है, AI's rapid evolution has transformed the way we live, work and interact with profound implications for various aspects of our society from healthcare to transportation. You are not supposed to proceed further with weak statements. अगर आप weak statements की बात करेंगे, आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप अपने लिए प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। ये लाइनें आपको कुछ नहीं देंगे। बहुत से मैंने एक्सपीरियंस देखे, दे क्लेम इट। एक चीज होती है दे से इट कि सर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, दे क्लेम इट कि सर हमारा ऐसे बिल्कुल ठीक था, पता नहीं एग्जामिनर ने क्यों फेल कर दिया। A lot many people are there जो ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उनको ये सारी की सारी चीजें याद हो गई होंगी, बट दे आर अनएबल टू राइट दिस वेरी लाइन कि इसको हम स्पेसिफिक लिख सकें। वो जब भी लिखेंगे वेग लिखेंगे, और वो क्लेम करेंगे इस चीज को कि वट एवर आई एम राइटिंग दैट इज अप टू द मार्क। एग्जामिनर की गलती है जो एग्जामिनर ने किया। This very rule should be there on the wall in front of you where you people used to stay. मैं ये चाहूंगा कि अगर हो सके तो इसको ना स्क्रीनशॉट निकाल के तो ये दो चीजें वहां पे लिख के लगा लीजिएगा सामने। Stay focused, ensure that your introduction directly relates to the essay topic and thesis। और दूसरे नंबर पे ये what to avoid जो मैं आपको बता रहा हूँ। जेनेरिक बातें करना, वीक वीक स्टेटमेंट्स नहीं सब। पाकिस्तान से हम ये ताकतवर मुल्क है, या पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दे डू नॉट ऐड वैल्यू और डेप्थ टू योर इंट्रोडक्शन। इसकी बजाय हमने अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स एंड द करंट अकाउंट डेफिशिट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी, दैट इज समथिंग जो इम्प्रूव स्टेटमेंट। इम्प्रूव्ड स्टेटमेंट में हमने जनरलाइजेशन से बचना है, हमने क्लैरिटी के अंदर जो है वो जाना है। और सादा लफ्जों में बताऊं, बेटा आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू बिजनेसमैन है। बेटा आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बाजान जो हैं वो एक अदद फैक्ट्री में मैनेजर हैं। वो वहाँ पर मुख्तलिफ बैजेस बनाते हैं, कपड़े का काम करते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं। You need to understand depth and clarity. You need to understand generalizations. They should not be there. I have given you a very basic example, and I'm sure ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा। Second thing, the major
blunder, not a mistake, that the aspirant they commit in the exam. They present their arguments in its entirety in the introduction. से जो है वो करना है। कैसे जो है वो एस्पिरेंट्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है। वन राइटर, वन बुक। एक बुक को तो एक एक से ज्यादा दफा, दो दफा कर सकते हैं। एक राइटर की एक ही कोट करें या मैक्सिमम दो करें। इंट्रोडक्शन में कर लिया है तो मेन बॉडी में कहीं पर कोट करें। दो से ज्यादा किसी सूरत में भी किसी भी राइटर को, बुक को कभी भी कोट नहीं करेंगे, उसी की बातें नहीं करेंगे। दूसरा ये बात बड़ी गौर से समझिएगा, डू नॉट प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स इन इट्स इंटायरिटी। इसका क्या मतलब? सेव द डिटेल्स फॉर द बॉडी पैराग्राफ। अब हमारे पास एक ही आर्ग्यूमेंट था, एक ही स्टैंस था जो हमने ले लिया कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। AI has overstepped its bounds by encroaching into areas such as autonomous decision making, privacy invasion, and job displacement. I am trying to make this line very simple for you people to digest. Okay, what I want you to understand कि भाई जितने कार्ड्स हैं खेलते हुए उन्हें इंट्रोडक्शन में मत दिखा दें, उन्हें मत दिखा दें। डिसीजन जो पॉइंट आपने कंक्लूजन के अंदर देना था, जो पॉइंट आपने मेन बॉडी के अंदर देना था, वो आप इंट्रोडक्शन में नहीं दे दीजिए। टॉपिक है एआई ने, जो 2023 का था, AI has overstepped its bounds. AI has overstepped its bound by encroaching into areas such as autonomous decision making, privacy invasions, and job displacement. आप अब इसको improve कैसे कर सकते हैं? This essay will argue that AI's expansion into domains like autonomous decision making, privacy concerns, and employment raises profound questions about its boundaries. The subsequent section will explore these issues in greater details, providing a comprehensive examination of the challenges AI present. अब मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई और काम कर रहे हो तो जरा उसे छोड़ के ये लाइनें गौर से पढ़ें, और जिस जिसको फर्क समझ में आ जाता है दोनों में, वो सिर्फ क्लियर लिख दे चैट बॉक्स में। ग्रेट इरफान, वो क्लियर लिख दे। कंप्लीट आर्ग्यूमेंट इन इंट्रोडक्शन। अपने इंट्रोडक्शन में कभी कंप्लीट आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे, बल्कि बताओगे कि मैं आगे चल के इनके ऊपर बात करूंगा। आई एम गोइंग टू, आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो चुका है, ये आपको पता चल चुका है। जो थीसिस स्टेटमेंट है आपका, जो आपने डिसीजंस नहीं दे देना, AI has overstepped its bound by encroaching ये करके आप उसको ये लिख लीजिए कि यहाँ यहाँ पे उसने जो है दिस ऐसे विल आर्ग्यू कीजिए उसमें अबाउट autonomous decision making, privacy concerns and employment raises। और मैं जब ऐसे देख रहा होता हूँ, बिलीव मी कि देयर आर लॉट मेनी लाइंस के जहाँ पे एस और ES की गलतियां मेरे सामने आ रही होती हैं, जहाँ पे मेरे पास जो है ये गलतियां आ रही होती हैं कि हमने कहाँ पे कैपिटलाइजेशन करनी है और कहाँ पे जो है वो कैपिटलाइजेशन नहीं करनी। पंचुएशन मार्क्स को बहुत से स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि शायद एक एग्जामिनर जो है वो पंचुएशन मार्क्स जो है वो उसे माइंड करता है या नहीं करता। लेट मी टेल यू कि एग्जामिनर उसे बहुत ज़्यादा माइंड करता है, पंचुएशन मार्क्स को देखता है। अगर आपको ये नहीं पता फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना था, कॉमा कहाँ पे लगाना है, ये सारी की सारी चीज़ें, यार ऐसी है ये तो हेल्पिंग वर्ब्स है ना यार। अब ये तो नहीं आप करें ना कि ही शीट के साथ जो है वैसा आएगा। वो कंपोजिशन की क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल से ना इंशाल्लाह। ये तो बड़ी बेसिक सी बात जो है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है ये डिटेल्स सारी की सारी आती हैं।
हमें क्यों ऐसे जो है वो हम फेल होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग जो है वो ये फील कर रहे होते हैं कि शायद हमारा एग्जामिनर जो है वो ये फील करता है, इन चीजों को इग्नोर कर देता। The punctuation marks and all the things, they are just like the signals। और आपका एग्जामिनर जो है वो उन्हें बड़े गौर से देखता है, समझने की कोशिश करता है कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो जी, हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो हमें क्लियर होगा। पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया कि हमें हुक स्टेटमेंट को मेंशन करना है, और हमने ये समझने की कोशिश की कैसे मेंशन करेंगे। फिर हमने जो है वो उनके पार्ट्स को देखने की कोशिश की, सारे के सारे। और अब जो है वो हम इस काबिल हो चुके हैं कि हमें ये भी पता चल चुका है कि हम किस तरह से प्रोसीड फर्दर करेंगे, जेनेरिक स्टेटमेंट्स को अवॉइड करेंगे, और किस तरह से हम कोशिश करेंगे कि डेप्थ में जाएंगे, क्लैरिटी में जाएंगे। तो फिर इसके बाद जो है नंबर 3 पे देखिएगा जरा, steer clear of making unsupported claims or promises you cannot fulfill in the asset। होता कुछ में कि हमने कुछ ही रिपोर्ट्स को सरफेस की सतह पे देखा होता है, कुछ ही रट्टा लगाया होता है। अब हम बस करना है तो चलो ये तो करते हैं। फूल प्रूफ सोल्यूशन, इज इट पॉसिबल कि आप जो हैं वो एआई के सॉल्यूशन जो है वो फूल प्रूफ सोल्यूशन दे सकें? इज इट पॉसिबल कि आप बता सकें कि एआई ने जो है वो अपनी ओवरस्टेप कर लिए है बाउंड्रीज को, सारे का सारा सोल्यूशन आपके पास है? नो, अनसपोर्टेड क्लेम्स कभी नहीं हो सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप देखेंगे दिस essay will critically examine the ethical challenges posed by AI, offering insights into potential strategies for addressing these concerns। कि हम इन कंसर्न्स को देखेंगे कैसे। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, ही इज सर्विंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर नाउ। ये उनका ऐसे है जो उन्होंने जब आगाज में लिखना शुरू किया था, तो तब का जो है वो ये हमारे पास ऐसे है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, मोटी मोटी से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ जो है वो। जस्ट चेक इट आउट द लॉन्ग डिटेल्ड जो है वो कैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा। और जब मैं आपसे ये कह रहा होता हूँ कि आप इसको देखेंगे, ये जो एक सारे के सारे सीक्वेंस है, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। खैर अभी जो हमारी डिस्कशन है वो ये रहेगी जनाब। मैं कुछ मिस्टेक्स जो है वो आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से ये बेसिक बेसिक से प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ अभी पंचुएशन को जो है हाँ जी, अब ये देखिएगा, ये हमारे पास आई डॉट ई डॉट आता है, लेकिन ये सर्कल जो है वो किया हुआ है, ठीक है, चेक करते हुए कि नहीं ये आपका गलत है। और इसको पेपर में भी ऐसे सर्कल करता है। ये जो चीज़ें उन्होंने बाद में ऐड करने की कोशिश की थी, समथिंग के जिसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन पे जो है वो जाने की कोशिश करते हैं। पहले जो है वो होली प्रॉफिट, इसके ऊपर डिटेल में जो है वो कमेंट देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग द होली प्रॉफिट, द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह इंस्ट्रक्टेड हजरत साद। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी माइनर माइनर डिटेल्स को हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं। ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए इससे कि आपका एग्जामिनर जो है वो माइंड करता है इन तमाम चीज़ों को। हमारे पास जब ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, कुछ ऐसा ही होता है एक्चुअल पेपर के अंदर भी, इवेल्युएटेड कॉपी जो होती है, कटिंग करना, ये सारे का सारा देखना। सो देयर लॉट मेनी कमेंट्स जो इसके ऊपर है, ये सारे का सारा कमेंट से बेसिकली बड़ा पड़ा है। यहाँ पे हर एक के ऊपर क्लिक करते जाएं तो हमें पता चलता जाएगा मिस्टेक्स कहाँ पे है, ठीक है।
ये क्या है, एक्सप्लेन करने के बाद ये सब के सब पॉइंट्स जो हैं वो किस किस तरह से चलेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल। और इस चीज़ से बजाय इसके कि आप फील कर रहे होते हैं कि हम अपने एग्जामिनर के साथ जो है वो शायद वो नोट करता है कि नहीं करता, यस, वो केयर करता है, वो हर चीज़ की केयर करता है। जहाँ पे विच आना है यहाँ पे विच आएगा, डेथ आएगा। ये जो दिस नंबर है, क्या ये दिस नंबर ही था? जो पाकिस्तान है इसको किस तरह से किया, ये क्या, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे प्रपोजिशन इन आनी थी, समथिंग लाइक दैट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि एग्जामिनर को हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो हम फील करते हैं कि शायद वो नोट नहीं करता, तो वो नोट करता है। और हमारे पास जो है वो इससे हमें अपनी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। इरफान साहब ऑलरेडी अपडेटेड है, आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, कभी कभी इसे ओपन किया करें। उसके ऊपर ये इवेल्यूटेड कॉपीज वहाँ पे लिखे, इवेल्यूटेड एसेस, ये इवेल्यूटेड एसेस पड़े हुए हैं वहाँ पे आप लोगों के लिए, आप देखिएगा। सो जी, हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है, एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो वीक स्टेटमेंट्स को अवॉइड करेगा, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइजेस को जो है वो मेंटेन रखेगा, और जो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट को रिवील नहीं करेगा। समरी ये है कि आर्ग्यूमेंट्स को नहीं बताएगा, वो भी बताएगा जो क्लेम्स आपने किए हैं वो ऐसे क्लेम्स नहीं हैं जो पूरे नहीं हो सकता, और आपके रीडर को इंगेज करने की कोशिश करेगा। आलिया ने क्वेश्चन पूछा कि सर कैसे इंगेज किया जा सकता है, हुक स्टेटमेंट्स होती कैसा? आपका इंट्रोडक्शन व्हेन आई से कि ये पास भी करवा सकता है और फेल भी करवा सकता है, कैसे मुमकिन है कि एक इंट्रोडक्शन की बेसिस पे आपका एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस भी हो जाता है और वो पेपर छोड़ भी देता? बड़ी लंबी जर्नी होती है अधूरे वाला, लोगों ने 4-4 साल लगाए होते हैं तैयारी में, 3-3 साल लगाए होते हैं। लोग पिछले 1-1 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कई लोग 3-3 महीने से कर लेते हैं। आप 70 साल भी तैयारी करते रहें, अगर आपने अपना ऐसे ठीक नहीं लिखेंगे, सिस्टम बिल्कुल आपको नहीं गुजरने देगा। सिस्टम को क्या पता है कि आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, 6 साल से कर रहे हो, या आपने जो है वो 2 महीने में अपनी तैयारी की। नोबडी केयर्स अबाउट दैट। उन्हें एक सेट पैटर्न के मुताबिक चीजें चाहिए। आप गलत लिख लिख के चाहे हजारों साल लगे रहो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र ले आओ, बट 2+2=4 बुरे वाला, ये चीजें मानेंगे तो निकलेंगे, नहीं तो फिर ऐसे में एफपीएससी की रिपोर्ट तो कहती है कि 98% लोग फेल होता है, और इसकी जिम्मेदार हैं हमारी यूनिवर्सिटीज, जो हमारे एस्पिरेंट्स को ये नहीं सिखाती हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू राइट। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से उन्हें पता चलता है कि ये जो है वो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, बट अल्टीमेटली द थिंग्स दे आर देयर। अब हमें जिन चीजों को जो है समझना है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अब जो समझना है, अब जब हम समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए मैं इसमें दिखाता हूँ कि इन्हें हल कैसे करना है। हमें हमारा इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा कोहेरेंट होना चाहिए कि हमारे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। इसीलिए जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको टॉपिक समझना है, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप टॉपिक को समझें। जब आप टॉपिक को समझ जाएंगे तो फिर आपका एग्जामिनर जो है इतने डिटेल्ड में लंबे नोट्स नहीं लिखेगा आपके पेपर के आखिर में। ये, अगर आप इसे अपनी स्क्रीन को जूम इन कर सकें, तो ये जो मैंने आप जो है वो लिखी, इसमें अगर पॉइंट नंबर 3 देख सकें, ये इसने बाद में रेक्टिफाई कर लिया चीजें बच्चे ने, माशाल्लाह। चूंकि अभी हम इनका पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आई विल नॉट नेम हिम आउट के हु ही इज, बट ही इज सिलेक्टेड एज अ पीएमएस ऑफिसर। अच्छा देखें, तीसरा नंबर पर पॉइंट है, अ स्ट्रॉन्ग अटेंशन रेबल स्टार्ट ऑफ द एसे, powerful references from the reliable sources. This is what your examiner is demanding.
different reports and facts and figures. Introduction and ending should have similarity in it. No new point should be introduced in the conclusion. अब जब हम ये सारी की सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इनके ऊपर अगर हम ग्रेजुअली काम कर लें तो ही हमारे लिए मुमकिन है कि हम जो है वो आसानी से निकल सकें। चीज़ें देखो मुश्किल नहीं है, समझने वाली है। एक दफ़ा समझ लोगे द थिंग्स दे विल बी इजी। और तब तक जो है जब तक आपने समझना नहीं है चीज़ें आसान नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आसान हो जाएं तो इनको भी आज फिर समझ लीजिए और समझने के बाद ही जाइएगा। कोशिश करें कि इनको जो है वो आप अप्लाई करें। अब हमारे पास जो है डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोफिशिएंसी द फर्स्ट स्टेप। अब इसका क्या मतलब है? एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन जो है वो बताता है कि आपकी इंग्लिश में कमांड कैसी है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप भारी भरकम अल्फाज जो हैं वो लिखना शुरू कर। ये सिर्फ ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आइडियाज को क्लियरली एंड परसुएसिवली आप बता सको, कन्विंस कर सको। सो कैसा होना चाहिए मेरा इंट्रोडक्शन कि आपकी प्रोफिशिएंसी नजर आए, गलतियां उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर पहले तो ये ग्रामर की बेसिक बेसिक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंचुएशन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो उसका पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करो। हुक स्टेटमेंट है, 2-3 कॉन्टेक्स्ट की लाइन है, थीसिस स्टेटमेंट है, एंड दैट्स ऑल। फिर एंगेज द रीडर। आपकी क्लियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और टॉपिक को कैप्चर करना चाहिए रीडर के इंटरेस्ट, मोटिवेट करना चाहिए कि वो इसको पढ़ता रहे। ये स्टेप फॉलो कर लो। तीसरे नंबर पे सेट्स द टून। आपका इंट्रोडक्शन इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो सारे के सारे ऐसे के लिए टून सेट करे, एग्जामिनर को बता सके कि जनाब मेरा जो ऐसे ऑर्गेनाइज है, जो इशू टॉपिक आपने दिया है उसके ऊपर फोकस्ड है और मैं कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स कर सकता हूँ। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपके लिए काफी इंट्रोडक्शंस जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह से लिखोगे, किस तरह से शुरू करोगे, हुक स्टेटमेंट कैसे देते हो। I will make all the things as easy as ABC for you, but I need your attention for that. जब तक आप सुनोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे, obviously the things they are very difficult for you. और आपका इंट्रोडक्शन एक रोड मैप देता हो आपके एग्जामिनर। अब हमारे पास जब मैंने कहा डिमॉन्स्ट्रेट योर प्रोफिशिएंसी, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है सादा लफ्जों में कि टॉपिक के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। In this essay, we will navigate the intricate landscape of जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, whatsoever जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको ग्रिप हो जाए कि मैं इन आइडियाज के बारे में आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हैं तो पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर नॉलेज है। किसी ऐसे टॉपिक को चूज ना कर लिया जाए कि जिसका पता ना हो। एंगेज द रीडर। रीडर को फॉर एग्जाम्पल ये लिखिएगा, You wake up to the soft hum of your smart assistant and you sip your morning coffee. Your refrigerator orders groceries you are running low on. ये क्या है? ये इंट्रोडक्शन है आलिया, ये हमारे पास इंगेज किया गया है उसको। You wake up to the soft hum of your smart assistant and you sip your morning coffee. Your refrigerator orders groceries you are running low. This is reality, that Internet of Things, things का T capital है, because it is referring towards something important, has ushered into our lives a reality where our everyday objects have become intelligent, interconnected beings. Engage करना चाहिए। Set the tone. आपके रीडर को पता चले कि आप बात क्या कर रहे हो, रोड मैप जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। अब जी एक जो है वो हमारे पास टॉपिक है, मुख्तलिफ तरह से इंट्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। हम फैक्ट से कर सकते हैं, हम कोई स्टैट से कर सकते हैं, हम स्टोरी से कर सकते हैं, हम रेट्रिक क्वेश्चन से कर सकते हैं।
मैं इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन जो है वो किस चीज़ से है? Did you know that artificial intelligence systems have become so advanced that they can now generate incredibly realistic human faces that do not actually belong to real people? अभी मैंने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया है आपके ख्याल में? क्या मैंने यहाँ पे कोई स्टोरी यूज की है, कोटेशन यूज की है, फैक्ट यूज किया है, या कुछ और यूज किया है? मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे? क्या ये एंटीडोट है या कुछ और है? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा दोबारा देखिएगा। Did you know that artificial intelligence systems have become so advanced that they can now generate incredibly realistic human faces that do not actually belong to the real people? अपना जवाब आपका जो भी था उसे माइंड में सेव कर लें। डॉक्टर आमिर साहब हैं हमारे पास? डॉक्टर आमिर साहब, मोहम्मद आमिर, और यू? डॉक्टर साहब, हमने आपको पिछली क्लासेस में मिस किया, तो प्लीज़ इसे सेव कर लीजिएगा माइंड में। डॉक्टर साहब इज़ एन एक्सीलेंट राइटर माशाल्लाह। डॉक्टर आमिर हैं, महानूर हैं, इंस्रा हैं, these people they are writing marvelous and I'm happy clapping for you people कि आप अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा जी, आपने जो है वो ये पढ़ा, महफूज कर लीजिए। आई एम नॉट गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक टेक्निक ये है, कौन सी है? अभी चूंकि ज्यादातर आंसर आपका गलत है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है ये बताइएगा कि हमारे पास जो है, आगे हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। Statistics reveal a startling truth: the growth of artificial intelligence has been nothing short of exponential. In 2018, the global AI market was valued at 20.67 billion and it is projected to reach 190.61 billion by 2025. What is this? Fact, stat, story, what it is? किससे जो है वो शुरू किया? ये हमारे पास जो है वो स्टैट से शुरू हुआ, स्टैट से शुरू हुआ। अभी तक जो मैंने आपको पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं, जो तरीक़ेकार अभी तक आपको समझ में आए हैं, स्क्रीन को मैं ज़रा ऑफ कर रहा हूँ। अब मुझे ज़रा बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, कितने तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं? कितनी तरह से जो है वो इसको आप शुरू कर सकते हैं? आपने वो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं। आपने अभी तक जो है जो डिस्कस किए हैं। ग्रेट, ग्रेट। आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इसको देखा, कि आपने ये देखा कि स्टैट के साथ जो है वो आपने इसको शुरू किया। अब अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बातें बता रहा हूँ कि आपने
ये भी देख लिया कि हमने चैट के साथ भी इसको शुरू कर सकते हैं। पहले वाला क्या है वो मैंने नहीं बताया, वो आपने गलत बताया था और वो आप आंसर देंगे। दैट इज द रीजन कि मैं सब बताने के बाद दोबारा वो पूछूंगा। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा। ठीक है। हमारे पास जो है, ये जरा आप देखने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट ईयर आई रिसीव्ड ए फोन कॉल फ्रॉम माय बैंक। जरा सुनिएगा। So I thought, the voice on the other hand, though remarkably human-like, was not a bank employee but rather an AI-driven chatbot. It skillfully answered my queries, resolved my issue, and even engaged in the light-hearted banter. ये कौन सा है? Last year I received a phone call from a bank, so I thought. The voice on the other end, though remarkably human-like, was not a bank employee. What it is? What it is? It is a personal story. आप इससे भी अपने इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। आलिया, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन कि किस तरह से आप करते हो, एंगेज करते हो? क्या हुक स्टेटमेंट होती है? हम हुक स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं कि किस तरह से हम हुक कर रहे हैं अटेंशन से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी अटेंशन हुक हो जाती है। लास्ट ईयर आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम अ बैंकर, सो आई थॉट द वॉइस ऑन द अदर एंड तो रिमार्केबली ह्यूमन लाइक। अब ये जो है वो पहली बात है जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अब जो है वो यहाँ पे देखिएगा। Consider the example of autonomous vehicles which have emerged as a hallmark of AI's progress. These self-driving cars were introduced with the promise of reducing accidents, making transportation more efficient and curbing traffic congestion. अब ये क्या हुआ आपके ख्याल में? Story, fact, stat, quotation, examples या हमारे पास anecdotes, rhetoric questions, context, ये क्या है? एग्जाम्पल्स। हमने एग्जाम्पल से शुरू किया। अब जरा उसी टॉपिक को आगे देखिएगा। Einstein's timeless words, it has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity, resonates profoundly in the age of artificial intelligence. ये किससे स्टार्ट हुआ? एक्सीलेंट। ये हमने एक कोटेशन से स्टार्ट किया, एक कोट से स्टार्ट किया। अब जब हमने एक कोटेशन से स्टार्ट किया, एक कोट से स्टार्ट किया, अब भी हमें पता चला कि किस तरह से हम प्रोसीड फर्दर करते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। अब यहाँ से जब हम मजीद एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिएगा। हाउ डिड वी अराइव एट ए पॉइंट वेयर मशीन्स कैन डायग्नोस डिजीजेस, write literature and make financial decisions independently? What, when did the technology we once perceived as a tool become so capable of autonomous decision making? Can we truly control and understand the AI system that no primate our lives? अब यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई? यहाँ पे कौन सी टेक्निक है? वेरी गुड, एक्सलेंट, यूएल, ग्रेट। अब जब हम इनसे इस्तेमाल करते हैं, इनसे प्रोसीड फर्दर करते हैं, ओनली देन हमें पता चलता है। और पीएमएस के पेपर से करते हुए बहुत मजे के एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं, यहाँ से किस तरह से शुरू करेंगे? हुक स्टेटमेंट का सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता। सो व्हाई द राइटर इज फोर्स्ड टू रीड दैट पर्टिकुलर एसे? अब आखिरी जो है वो इंट्रोडक्शन देखिएगा और ये गेस कीजिएगा। इन अ वर्ड
increasingly shaped by technology, the emergence of artificial intelligence has been nothing short of a technological revolution. Initially conceived as a tool to assist and augment human capabilities, AI has swiftly evolved, transcending the boundaries of original purpose. यहाँ पे कौन सी है? स्मार्टली देखिएगा इसे। मुमकिन है कि आप यहाँ पे कोई भी टेक्निक ना देख पाए, मुमकिन है यहाँ पे कोई टेक्निक हो, मुमकिन है कि यहाँ पे कुछ भी ना हो। So though something is there. Okay, ये हमारे पास कहलाता है कॉन्टेक्स्ट। जब ऊपर बयान करदा चीज कोई भी समझ में ना आ रही हो, यही ना पता चल रहा हो कि भाई कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई कोटेशन समझ में नहीं आ रही, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रही, कोई स्टैट समझ में नहीं आ रहा, कोई फैक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये टेक्निक हेल्प कर देगी। इसमें क्या करोगे, टॉपिक को ही जो है वो उसके कॉन्टेक्स्ट को बयान कर दोगे। In a world increasingly shaped by technology, the emergence of artificial intelligence has been nothing short of technological revolution. लेकिन यहाँ पे हुक स्टेटमेंट नहीं बन पाएगी, आपके एग्जामिनर को उतना मुतासिर नहीं कर पाएगा, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप खुद ही देखने की कोशिश कर लें। इसके मुकाबले में जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हाउ डिड वी अराइव एट ए पॉइंट वेयर मशीन्स कैन डायग्नोज डिजीजेस, फील कर रहे हैं आप, ये ज्यादा एंगेजिंग है। राइट लिटरेचर एंड मेक फाइनेंशियल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। सी, ये इंगेज करता है, रिकमेंडेड है, इसको करोगे। और इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, आपके एग्जामिनर ने नहीं आंसर करना। ये देखें, Einstein's timeless words, it has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. अपील करता है, रिकमेंडेड है, कोटेशन को देखें। और ये ना आपके जो है वो साथ बुक शेयर की गई है, दोबारा आपके ग्रुप में नेम सब शेयर कर देंगे, जहाँ पे आपके पास कोर्स हैं, कोर्स के लिए जो है वो बुक्स मौजूद हैं, उन कोर्स को देखें। ठीक है, मैं अभी क्लास से पहले देख रहा था, जुनेद साहब ने जो है वो इस्लामिक स्टडीज के भी बड़े अच्छे नोट्स थे, उन्होंने शेयर किए हुए हैं हमारे जो है वो पेज के ऊपर भी। तो वहाँ पे भी आपको जो है वो इस्लामिक कोर्स भी मिल जाएंगे। ये पेज का एड्रेस है माई MOCC लाइव, बस आपने याद रखना है, बाकी वही है। इस URL में पुट करेंगे तो यू विल बी देयर। अब यहाँ से जो है, और वो बुक आपके पास होगी, वो कोटेशंस की है, उसमें से कोर्स याद करना। कंसीडर द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोनमस व्हीकल्स। अब मेरे पास दोबारा आ जाइए, जो मैंने कहा था कि आप बताएंगे ये क्या। Did you know that artificial intelligence systems have become so advanced that they can now generate incredibly realistic human faces? दोबारा गेस कीजिए, ये क्या हो सकता है? कुछ है अलबत्ता। आपने किताबों में कभी पढ़ा है डू यू नो, और उसके बाद जो है वो नीचे कुछ लिखा होता है? किताबों में देखा होगा, आई एम श्योर, जनरल साइंसेस की बुक में। इट इज फैक्ट। Did you know that the artificial intelligence system have become so advanced that they can now generate incredibly realistic human faces? ये सारी की सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हम जो हैं इंट्रोडक्शन को लिखेंगे कैसे। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अब हमें इंट्रोडक्शन की अहमियत का पता चल चुका है। इंट्रोडक्शन, अगर मैं डिस्कशन को सम अप कर सकूं, व्हेन आई से, when I call an introduction, what is an introduction? An introduction is the very first paragraph of your essay. So the first limitation is usually 5 to 10 sentences. The second limitation is catches the reader's attention and interest. The third is gives a general topic of the essay, general topic.
gives background information about the topic, states the main point of the essay. लेकिन इस escalation पे हम कल प्रोसीड फर्दर करेंगे। आज के लिए मैं ये चाहूँगा कि जो जितनी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, आप एक दफ़ा ज़रा इनको अपनी नज़र से दोबारा गुज़ारें। इन तमाम चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन जो है वो किस-किस तरह से लिखा जाता है, आपके एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस कैसे करता है, किस-किस तरह से डिटेल्स जो हैं वो आपके एग्ज़ामिनर के पास पहुँचती हैं, एग्ज़ामिनर लेता कैसे, परसीव क्या करता है, मीनिंग्स क्या समझता है और आप अगर अभी तक जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो आपको क्यों करना चाहिए? ये मैंने डिटेल से बताई, जब आप इसको कर चुके हों, तो फिर आपने वेरी गुड उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने असाइनमेंट पे काम किया। इस लेवल पे मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि आपने काम जो है, वो डेली बेसिस पे जो है वो करना है। पर्सनल वो जो स्टोरी था ना, दैट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ एंटीडोट। पर्सनल स्टोरी में ये होता है कि वो जो है वो ज़्यादा फिक्टिशियस होता है। पर्सनल स्टोरी जो है वो उसमें फ़िक्शंस आ सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर आज जैसे ही मैं सुबह उठा मैंने देखा कि कारें हवा में उड़ रही हैं, ठीक है? और मैंने देखा कि हवा के अंदर एक्सीडेंट हुआ है। ये 2050 की एक खूबसूरत सुबह है जिसमें हवा के अंदर जो है वो गाड़ियाँ उड़ रही हैं। ये हमारे पास जो ऐसे का स्टार्ट है, ये स्टोरी से है। एंटीडोट का मतलब वो है जो कि रियलिटी बेस्ड होता है, जो इसके अंदर था ना कि उसने कहा कि मुझे बैंक से कॉल आई है, मैंने देखा कि चैटबॉट बात कर रहा है, वो एंटीडोट है, जो रियलिटी के ऊपर है। स्टोरी जो है वो फिक्शन पे बेस हो सकती है, ठीक है? एंटीडोट रिकमेंडेड है, स्टोरी रिकमेंडेड नहीं है, उसको अवॉइड करें इस लेवल पे। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन आलिया? अब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एक-एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, कोशिश की है कि आपको मैं बता सकूँ। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट्स। अगर फ़ाइल आपके साथ शेयर नहीं होती है या बाद में होती है, हुक के साथ करें, कॉन्टेक्स्ट के साथ करें, थीसिस स्टेटमेंट को प्रेज़ेंट करें। उसके बाद आउटलाइन करें, क्या करना है, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जहाँ पे आप जो है वो पढ़ते हैं बैठ के, प्लीज़ इसको ज़रा निकाल के वहाँ पे लिख के लगा दीजिएगा। एंश्योर दैट योर इंट्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेट्स ऐसे टॉपिक्स एंड द थीसिस। और जब मैं थीसिस स्टेटमेंट देखता हूँ, ऐसे टॉपिक देखता हूँ, तो वो बच्चा वैसे ही फ़ेल हो चुका होता है। तो ये वो मेन पॉइंट है। अगर आपने ये पॉइंट जो है वो फ़ॉलो कर लिया, तो 99% चांसेस हैं कि आप अपना ऐसे कभी फ़ेल नहीं करोगे, इल्ला कि आपने सही अंग्रेज़ी लिखी हो। फिर अवॉइड क्या करना है, वो भी सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वो बयान किए हैं। एक-एक को जो है वो मेंशन करने की कोशिश की है। देन उसके बाद जो है वो इनको एक्सप्लेन किया। सो इसको ज़रा डिटेल से समझ के पढ़िए। इट इज़ क्वाइट ईज़ी फॉर मी कि मैं यहाँ से आगे चलूँ और मज़ीद जो है वो चीज़ें समझाऊँ। लेकिन ये पढ़ें एंगेज कैसे करोगे, रीडर की टोन कैसे सेट करोगे, प्रोवाइड द रूट मैप और ख़ुसूसन वो स्टूडेंट्स जो हमारे डेली जो है वो सिर्फ़ राइटिंग सेशन के अंदर हैं। नहीं यार लिखिए नहीं प्लीज़ आप, मैं लिख रहा हूँ, आप ना लिखिए, लाइनें नहीं लगाएँ। तो वो इनको ज़रूर जो है वो देखें। अब हमारे पास इन प्रोफिशिएंसीज़ को देखने के साथ-साथ आज की डॉन के अंदर जो है वो आई एम रियली सॉरी युसरा, इट इज़ रियली हार्ट ग्रैबिंग कि आपको जो है वो खुदा हाफ़िज़ हमें कहना पड़ेगा। आपने 2 दफ़ा जो है वो कर दिया, तो फिर किसी क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तो आप प्लीज़ इसे नहीं कीजिएगा, मुझे आपको रिमूव करना पड़ रहा है एंड द वेरी रीज़न इज़ दैट कि आप अटेंशन जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, ये टाइप करके, मार्क करके, नहीं कीजिएगा। तो आई एम सॉरी आई हैव रिमूव्ड यू बट क्लासेस का डेकोरम ऐसे ही होता है, हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, यार ये पूरा लेक्चर हो लेने दें फिर उसके बाद शुक्रिया अदा कर लीजिएगा। आज का डॉन था, उस डॉन में 2-3 चीज़ें जो हैं, मलीहा लोधी का जो आर्टिकल है, उसको जो है वो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं रिकमेंड कर दिया है उसमें चीज़ें जो है वो। वोकैब्युलरी है अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी क्लासेस में हैं और कुछ कोटेशंस हैं। अच्छा जी आपको ना रेगुलर क्लासेस में और जो एसेज़ हैं
फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड्स मैं आपको रोजाना 3 कोर्स जो हैं वो दे दूंगा, और ये भी आपको मैं बता दूंगा कि जनाब आपको जो है ये वाली, अगर जिस तरह से रीजनल स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है, और ये इशू आ रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, इसराइल के अंदर और फ़लस्तीन का, तो जो कोर्स इस बारे में आप लिख सकते हैं आसान कोर्स, और जो मैं समझता हूँ कि अगर एस्पिरेंट ने लिखी हों तो बीइंग एन एग्जामिनर मैं उसे जो है, जब इस चीन के ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर कुछ लोकेशंस फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान आपको पता है दोबारा से एक 9/11 के जो है वो दुराहे पे चला गया। क्यों? अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ है, सऊदी अरेबिया जो है वो किसके साथ है, वो इस दफ़ा गज़ा के साथ है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि हम किसी के साथ हों, लेकिन अमेरिका हमें लोन देता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और ये हमारे जो है वो बैंक्स में पैसे रखते हैं, हमें बचाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इधर जाएं या इधर जाएं, ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। बैरिकैप टॉपिक आ सकता है, और मैं जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ इसको। पहली जो है वो कोट है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अच्छा जी, ये कोट है और मार्टिन लूथर किंग की है। कोटेशन जब भी आप देंगे, आप हमेशा जो है वो नाम लिखेंगे कि जिनकी जो है वो कोट है, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी। ठीक है, जो कोट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी, तो मेक इट श्योर कि ये कोट कर रहे हैं आप में वो, और इसमें अपनी जो है वो तरफ से कोट ना करने की कोशिश कीजिएगा कुछ भी प्लीज। ये पहली कोट है, इससे आप अपना ऐसे शुरू कर सकते हैं अगर आपको रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर लिखना पड़ जाता है। दूसरा जो है वो एक कोट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वंस अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ। ये आखिरी कोट होगी, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ conflict, it is ability to handle conflict by peaceful manners। अच्छा जी, ये हमारे पास रहेगी दूसरी कोट। और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि जो भी कोट होगी आप उसे उसके प्रॉपर डेकोरम के अंदर लिखेंगे, और जिसकी कोट है उसका नाम जो है वो ज़रूर आप मेंशन करेंगे। अमूमन हम कोट्स को लिखने के लिए जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कुछ जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, हम कभी भी पेरेंथेसिस को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो रोनाल्ड रीगन जो है वो उनकी उनकी कोट है। और इसे हम जो है वो बंद कर देंगे। आई एम श्योर कि जी ये कोट्स हैं जो कि आ सकती हैं। टॉपिक्स मैंने बता दिया है, एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट पे आपके पास आ सकता है। कुछ जो है वो हमारे पास जो है जी, इस कोड को कोशिश करेंगे मिडिल में लिखेंगे विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, विजिबिलिटी के लिए सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन आप अगर इसे मिडिल में लिखते हैं तो दैट्स फाइन, ताकि आपके एग्जामिनर को पता चल सके। द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन, इन केस यू हैव क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो नया इन क्लासेस में ऐड होगा वो ये है कि वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं, वो भी मैं आपको आपकी फाइल में अपडेट कर दूंगा। ये टॉपिक्स डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये वाले टॉपिक्स हैं, ये वाले कोड्स हैं। इनका डेटा जो है वो कल से ऑनवर्ड्स मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला डेटा है, आप ये वाला डेटा जो है वो प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, ये वाले सोर्सेज आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये जो अगले 2 महीने हैं आपके एग्जाम्स के पहुंचने तक जो है, मेरी कोशिश रहेगी और ये मेरा वादा रहेगा इंशाल्लाह कि जो टॉपिक्स आपको मैं बता दूंगा, इंशाल्लाह आपका पेपर उसमें से कवर हो जाएगा। और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जामिनर जिन चीज़ों को हिट करता है वो वही होती हैं जो कि डेली लाइफ से चल रही होती हैं। बस एक काम कीजिएगा, जो अगले 2 माह हमारे सेशंस के नोट्स हैं डेली क्लासेस के, 2 माह में हफ्ते में 4 दिन तो वैसे हमारी क्लासेस होती हैं। तो इन 4 के 4 दिनों की जो क्लासेस हैं, 1 से 1.5 घंटे की, इनको बड़े ध्यान से लीजिए। जो 98% लोग जिसमें फेल होते हैं, आप उस लिस्ट में नहीं होंगे।
इंशाल्लाह, ठीक है। एंड आई एम वेरी होपफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सेकंड कोट किस टॉपिक का है, क्या हम लिख सकते हैं? अगर आप कोट पढ़ते हैं, सरमद साहब, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज द एबिलिटी टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मैनर्स। तो अब ये हमारे पास पीस की बात कर रहा है। आप मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट पे लिख सकते हैं, आप पाकिस्तान के टेररिज्म पे लिख सकते हैं, आप टीटीपी के साथ मुआहदों पे लिख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। Thank you so much, respected sir. It's very effective session with fruitful information. Thank you so much जी। जिन्होंने आपके साथ लिंक शेयर किया था उनको अगर आप थैंक यू नोट भेज सकें तो इट विल बी वंडरफुल। ये मेरा ख्याल है हमारे कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने लिंक भेजा होगा। सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने इसको अटेंड किया। यस, ये भी लिख सकते हैं। यार पाकिस्तान वालों के ना ही लिखना तो अच्छा है अब्दुल राउफ। पाकिस्तान पीएम की कोर्ट का मतलब है कि आप घपला करोगे, आप अपने पास से उस कोर्ट को लिखने की कोशिश करोगे। सो पाकिस्तान जो है वो पीएम, इनको प्लीज अभी छोड़ दें, आप ये वाली कर लें यार, ठीक है। मेंशन कर सकते हो इमरान खान की स्टेटमेंट, मेंशन कर सकते हो जो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे उसने लिखी कही, ठीक है। आप उन पे बात कर सकते हो, या आप मियां साहब से उनकी पर्चियां ले सकते हो जो वो ओबामा के सामने बैठ के पढ़ते थे। बट अवॉइड करें। इस्टेब्लिश, ये कल की क्लास में मैं बताऊंगा कि कोर्ट किनको किया जा सकता है, ठीक है। कल की इंट्रोडक्शन वाली क्लास जो हमारी है ना, सेकंड क्लास, उसमें मैं इस पे भी बात करूंगा कि कोर्ट कर किसको सकते हो, ठीक है। कोर्ट किसको किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या उसका भी कोई पैरामीटर है कि उसको कोर्ट कर सकते हैं? अब मुझे कोर्ट क्यों नहीं कर सकते हो, किसको कोर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। सो जी, अज्यूमिंग आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की, एंड आई एम श्योर कि योर जर्नी इंशाल्लाह विद मी, अल्लाह के फजल करम से हम इस ऐसे में जो है वो ज़रूर अच्छे से पास होंगे, ठीक है। मास्टरी ऑफ कंपटीशन जो है वो कॉन्सेप्ट है, या competitive कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है वो, लेट्स एमओसी से। टेक केयर जी, खुदा हाफिज।